taken aback, nervous and happy at the same time. पागल आदमी और शो पागल है. शो में बिजार हरकतें हो रही हैं. हाँ. और वो बिजारनेस को मैच करने के लिए एक ही आदमी है, टीटू मामा. No other character has that relatability with the audience. Just like Titu Mama has. Hi Bhuvan, welcome to OTT Play. It's truly exciting to have you here for a conversation. Thank you. Thanks for calling me. Yeah. But tell me, what was your instant reaction, like the first reaction when the offer of Takeshi's Castle was made to you? Yeah, I was very excited, taken aback, nervous, and happy at the same time. It's an honor to be dubbing for such a brand. Takeshi Castle तो legacy है ना, एक Of brand course, है. yeah. We've all grown up watching it, and our childhood memories are attached with this particular show. And I'm so happy that Titu Mama is lending his voice for this. Yeah. सही है, मेरे को बड़ी खुशी है. Very खुशी. But of course, like you mentioned, we all have grown up watching Takeshi's Castle. What are your fondest memories regarding this show? I feel just like everyone else. स्कूल की आखिरी घंटी बजने के बाद घर आना और ये देखना कि अगले 4 घंटे आपके फेवरेट शोज लाइंड अप होंगे, जिसमें से एक तकेशीज़ कासल है. दैट हैज़ टू बी द मोस्ट वाइटल मेमोरी. जो मुझे याद है वो एक्साइटमेंट आज भी, मुझे वो एक्साइटमेंट याद है. ऐसा कभी नहीं होता कि आपको वो एक्साइटमेंट याद ना हो, बट वो एक्साइटमेंट है. एंड आई एम सो, मतलब नॉट ओनली मी, लाइक एवरी किड फ्रॉम द 90s, Of course, they have the this 90s era. they have this nostalgia that is attached to this show. सही है, मजा. सही है, सही बिल्कुल है. मजा. But the added touch that you have brought to the show is Titu Mama का character. जी. Tell me what made you pick Titu Mama's character personally to do voice over for Takeshi's Castle? यार पागल आदमी है ये. पागल आदमी और ये शो पागल है. शो में बिजार हरकतें हो रही हैं. हाँ. और वो बिजारनेस को मैच करने के लिए एक ही आदमी है, टीटू मामा. क्योंकि आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले इन बीबी की वाइन्स, no other character has that relatability with the audience. Just like Titu Mama has. समीर भी ख्याल में आया था कि समीर के साथ भी कर सकते हैं, पर उसकी कुछ चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी अच्छे से, क्योंकि वो च को ह बोलता है, स को फ बोलता है, तो वो शायद जोक ना लैंड करे. तो टीटू मामा इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स, वन ऑफ दोज पीपल हु कैन एक्चुअली say anything and get away with it. And I think the show is that only. Yeah, of शो में course. भी जितनी ऊट पटांग हरकतें हो रही हैं उसको मैच करने के लिए Titu Mama is like the perfect fit for perfect it. fit. Yeah. But also, BB Ki Vines also completed 8 years. जी. Tell me, how has the journey been? Now today, when you look at the position where you are today, looking at the journey you have had in the industry, is there anything you wish you could have done differently? No, not at all. Not at all. I'm proud of the mistakes that I've made. I'm proud of the mistakes that I'm going to make in life. I don't know what क्या होंगी वो गलतियाँ, पर सही है, गलतियाँ करनी चाहिए. No regrets. No regrets at all. No. Yeah. But tell me, how was the experience been so far working on the Takeshi's Castle? It's a new project for me. Yeah. एकदम नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज़ है. बैठ के, खड़े होके, लेट के, आप जैसे भी डब करो, फुल जान आपको लगानी है इसके अंदर. राइटिंग हैज़ प्लेड अ मेजर पार्ट, दो मोस्ट ऑफ इट वॉज स्पॉन्टेनियस Yeah. ऑन द डे ऑफ डब. कभी देख के कुछ सीन लगा है कि ये लिखा हुआ नहीं जाएगा इस पर, कुछ अपना ले लेते हैं, तो वो स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़रूरी थी इसमें. एंड जब आप 12-13 घंटे रोज़ करते हो डब, तो एक टाइम के बाद आपको लगता है कि, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि टीटू मामा की आवाज़ इस एपिसोड में कुछ और है और उस एपिसोड में कुछ और साउंड कर रही है, क्योंकि एक दिन गला ख़राब है. और स्टूडियोज़ तो बहुत ठंडे होते हैं. Yes. डबिंग स्टूडियोज़ बहुत चिल्ड होते हैं, तो वो भी है, वो भी फैक्टर्स थे, कई सारे फैक्टर्स थे. तो एक अलग की किस्म की राइड रही है ये, इसको डब करना. 120 दिन तो मिनिमम लगे ही हैं इसमें, लिखने से लेकर डब करने तक. But it's been a wholesome experience. होलसम एक्सपीरियंस. मतलब मैं एक दिन मुझे याद है, एक दिन, वो 120 में से 120 दिन मुझे याद है कि कैसे गए हैं वहाँ पे. Yeah. और क्या कई बार बहुत प्रेशर होता था, कई बार होता था कि वाह आज तो मज़ा आ गया, ये हो गया, वो हो गया. ऑल एंड आउट बहुत एक नया एक्सपीरियंस है और मज़ा आएगा इसको जनता के साथ देखने में. हाँ, जनता के साथ देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ इमोशंस आर अटैच्ड टू द गेम शो. आई मीन तकेशी's कासल जो 1986 में आया था. डू यू फील उसका जो सक्सेस रहा है दैट हैज काइंड ऑफ एडेड अ प्रेशर ऑन यू टू काइंड ऑफ लिव अप टू जो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस है?
ऑफ कोर्स यार, एक इतनी बड़ी लेगेसी है, उसका रीबूट, उसका एक नया वर्जन आ रहा है और ऐसे आ रहा है 34 साल बाद आ रहा है, तो आई फील अब जनरेशन भी जिन्होंने नहीं देखा पुराना वाला, उनके लिए क्या, वो कैसे देखते हैं इसको, मेरे को वो एक्साइटमेंट है ज़्यादा, क्योंकि अपने को तो पता है कि क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा। टास्क्स मोर और लेस सेम है, अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उसके, पर नई जनरेशन इसको कैसे देखती है वो बहुत मज़ेदार होगा, Of एक्साइटिंग। course, it's going to be exciting. जी। But also, you have been in the digital space, especially the OTT space, for a while now. Considering जो content बन रहा है, you know, the kind of web shows are made, the web films are made, do you feel ये जो content है OTT platforms पे, it should be censored somewhere? डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं। सेंसरशिप तो आपके इवेंचुअल हाथ में है नहीं, अब सेंसरशिप है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं वो कौन सी देख रहा था, क्रिस्टोफर नोलन की जो ओपेनहाइमर जो थी, उसमें देख रहा था, उसमें कुछ चीज़ें एकदम भलती कुछ सेंसर की हुई, पर हाँ मतलब रूल्स हैं तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। I think one must abide by it. हाँ, you have to abide by But it. there's हाँ, no option, there's no कोई option ही नहीं option. भाई साहब, जो है वो है। But thank you so much, Bhuvan, for doing this exciting Thank you. segment and of course shedding light on Takeshi's Castle that will soon stream on Prime Video. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.